ہے کہ جن کی زندگی کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں اور اپنے سیکسول ڈیزائرز کو پورا کریں. تو یہ ہے جانورانہ خصوصیات. اور میں تو یہ کہوں گا میرے دوست، اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی ان حیوانی خصوصیتوں میں جانوروں سے بھی آگے ہو جاتے ہیں. حیوانی خصوصیات کچھ لوگوں کے اوپر اس قدر غالب آ جاتی ہیں کہ وہ جانوروں سے بھی آگے ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے دیکھیے، جانور کم سے کم اس کی ایک ہی غذا ہوتی ہے، وہ اپنی غذا کو پہچان کر کھاتا ہے. لیکن حضرت انسان، ان کو کچھ نہ کچھ تو فضیلت ہونا ہی چاہیے جانور کے اوپر. حیوانی خصوصیت غالب ہوئی تو اب ان کے کھانے پینے کا ڈھنگ یہ ہوتا ہے، کھانے پینے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے آ جائے اس کو کھا جائے، جو بھی سامنے آ جائے اس کو کھا جائیں. اور میاں آپ تو جانتے ہیں کہ کچھ انسان ایسے بھی ہیں کہ سانپ کھا جائیں، چوہا کھا جائیں، چھپکلی کھا جائیں، چھچوندر کھا جائیں، بلی کھا جائیں، بندر کھا جائیں، کتا کھا جائے، سور کھا جائے، جو بھی آ جائے سامنے بس چٹ کر جائے. تو کچھ انسان تو وہ ہیں اور آپ انہیں خوب پہچانتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جانورانہ اور حیوانی خصوصیات انسان کے اوپر غالب ہوتی ہیں تو وہ جائز نہیں دیکھتا، ناجائز نہیں دیکھتا، پاک نہیں دیکھتا، ناپاک نہیں دیکھتا، حرام نہیں دیکھتا، حلال نہیں دیکھتا. جو بھی سامنے آ جاتا ہے اس کو چٹ کر جاتا ہے. اور آج کل کا ماڈرن انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ ارے میاں یہ جائز ناجائز حرام حلال کی باتیں یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں. اب تو زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، بس جو بھی سامنے آ جائے اس کو کھا جاؤ. تو سب کچھ کھاتے چلے جاتے ہیں. اور جب پینے پہ آئے تو پینے کا حال بھی یہ ہے کہ پانی پیئیں، دودھ پیئیں، شربت پیئیں، لسی پیئیں، اور فنٹا پیئیں، پیپسی پیئیں، ہے نا، کوکا کولا پی جائیں. خیر بھائی یہ سب پینا ٹھیک، جو چاہو پیو، جائز ہے یہ ساری چیز. لیکن مشکل تو یہ ہے کہ آج کا انسان جب پینے پہ آتا ہے تو دودھ اور لسی نہیں پیتا، اور فنٹا اور پیپسی ہی نہیں پیتا ہے، بیئر پیتا ہے، اسکاچ پیتا ہے، اور وسکی پیتا ہے. اور یہ اگر وسکی پھسکی نہ ملے وہ پی نہیں جاتی. اگر وسکی اس کی نہ ملے تو ٹھرا پیتا ہے. اور اگر اتفاق سے کچھ لوگوں کو ٹھرا نہیں ملا تو ان کو کسی نے بوٹ پالش پانی میں گھول کر دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ ٹھرا ہے، تو وہ اسی کو پی گئے. آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ایک ملک میں اس قسم کے واقعات ہوئے کہ لوگ بہت سی تعداد میں ٹھرا پی کے مر گئے. آج اس شہر میں مرے تو کل اس شہر میں سینکڑوں کی تعداد. اس کے بعد انکوائری ہوئی کہ کون سی شراب انہوں نے پی تھی، کس قسم کا انہوں نے ٹھرا پیا تھا. انکوائری ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ اس ٹھرے میں بوٹ پالش ملا دی گئی تھی، جوتے کی پالش مکس کر دی گئی تھی، اس کو بھی وہ شراب کے دھوکے میں پی گئے. تو میرے دوستوں میں یہ کہوں گا کہ جب تمیز یہ ہے، جب پہچان کا عالم یہ ہے، اور جب پینے کی حالت یہ ہے کہ جو بھی سامنے آ جائے اس کو پی جاؤ، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، حرام ہو یا حلال، پاک ہو یا ناپاک، اپنی صحت کے فائدے اور نقصان کے بھی نہ دیکھے انسان. اور جب پہچان کا عالم یہ ہے کہ ٹھرے کے نام کے اوپر بوٹ پالش کو پی جائے تو
तो फिर क्या ताज्जुब है कि अगर आप अपने पेशाब में थोड़ी सी विस्की मिलाकर उनको दे दें तो वो उसको भी पी जाएंगे। इसलिए कि तो उनको तो पीना है, ठर्रा पीना है, विस्की पीना है। ठर्रे के नाम के ऊपर बूट पॉलिश पी गए, अब विस्की के नाम के ऊपर आपका पेशाब भी पी जाए तो क्या ताज्जुब है। पी लेंगे और पीने के बाद आप उनसे पूछेंगे कि कहो भाई कैसी है, तो कहेंगे कि ठीक है, फ्लेवर तो अच्छा है लेकिन जरा हल्की है। क्या बात, फ्लेवर अच्छा है ना, इसलिए विस्की का फ्लेवर आ गया ना। फ्लेवर तो अच्छा है लेकिन जरा हल्की। मेरे दोस्त, तो हंसने की बात नहीं, गौर करने की बात है कि आज की दुनिया में ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा। आज की दुनिया में इंसान क्या खाता है और क्या क्या पी रहा है, जायज नाजायज, हराम हलाल का कोई ख्याल नहीं। और जब खाने का ये हाल है और पीने का ये हाल है मियां, तो एक हैवानी खुसूसियत यानी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना, इनमें भी हजरत इंसान जानवरों से पीछे काहे को रह जाएंगे। जब इस लाइन में भी आएंगे तो जानवरों को कहीं पीछे छोड़ देंगे। हाँ, आप देख लीजिए, अपने आसपास नजर उठाकर देखिए, अपने शहर की गलियों और कूचों को देखिए, अपने मुल्क के सड़कों और बाजारों को देखिए, जिस तरफ नजर उठाइए आप ये देखेंगे कि बेशर्मी के मुजाहरे हैं, बेहयाई के मुजाहरे हैं। आप ये देखेंगे कि आज का इंसान बेशर्मी और बेहयाई में कुत्तों को भी मात कर चुका है। आज का इंसान इतना बेशर्म हो गया है कि उसकी बेशर्मी को देखकर कुत्ते भी मुंह फेर लें। आज का मर्द औरतों के पीछे घूमता है और बल्कि औरतें भी अब मर्दों से पीछे नहीं रही। देख लीजिए अपने अपने क्लब और रेस्टोरेंट में, अपने होटलों में जाकर देखिए, और मियां बेशर्मी के मुजाहरे यही नहीं खत्म हो गए। आज का इंसान ब्यूटी कंपटीशन करता है। ब्यूटी कंपटीशन में हर मुल्क की हसीनाओं को जमा किया जाता है। हसीनाएं जमा की जाती हैं और जिस तरीके से आपको अगर कोई जानवर खरीदना हो, आप जानवर खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे, भैंस खरीदेंगे, बकरी खरीदेंगे, तो क्या करेंगे? कभी उसकी पीठ के ऊपर हाथ रख के देखेंगे, कभी उसके सीने को टटोलेंगे कि इसके अंदर कितना गोश्त है। और अगर आपने दूध के लिए जानवर खरीदा है तो उसके अंदर उसके थन देखेंगे कि ये कितने दूध देने वाली है, कभी उसके पुट्ठे को टटोलेंगे। और मियां आपको तो खरीदना है इसलिए टटोलते हैं, लेकिन इन कमबख्तों को देखो कि उन्हें बेचना नहीं, इन्हें खरीदना नहीं, सिर्फ ब्यूटी कंपटीशन के नाम के ऊपर टटोल लिया करते हैं। ब्यूटी कंपटीशन के नाम के ऊपर ये सारी बेशर्मी के काम करते हैं। उनके अप एंड डाउन को देखते हैं और हर तरीके से नाप लेते हैं, तोल लेते हैं। तो बेशर्मी नहीं, ये बेहयाई नहीं, तो ये और क्या है? बात यही खत्म नहीं होती। कहीं कहीं ऐसे कल्ब भी हुआ करते हैं कि जहां कोई बेशर्म हसीना टोटली नेकेड होकर, बिल्कुल नंगी होकर, अपने जिस्म के तमाम कपड़े उतार के एक जगह गुस्ल करती है और सारे हाज़रीन सामने बैठ के उसको देखते हैं। हसीना नहा रही है, नहाने के बाद उसने एक तौलिया हाज़रीन के अंदर फेंक दी। हाज़रीन में से एक शख्स उठा, सबने कोशिश की कि उस तौलिया को हम हासिल कर लें, लेकिन इत्तेफाक से वो तौलिया एक शख्स के हाथ में आ गई। अब वो तौलिया अपने हाथ में लेता है, समझे, और दूसरों को बड़ी उससे देखता है कि वाह रह गए, लो ये तौलिया हमको मिल गई। अब चाहता है डायरेक्ट के ऊपर उस हसीना के भीगे हुए बदन को खुश करता है, उस हसीना के बदन को पोंछता है, और जो दूसरे लोग हैं वो हाथ मलते हैं, उसकी किस्मत के ऊपर बैठे हुए रश करते हैं और जनाब राज टपकाते हैं कि हाय हाय ये तौलिया हमें नहीं मिली और इस कमबख्त को मिल गई। हालांकि कमबख्त वही नहीं, ये सब के सब कमबख्त हैं जो ऐसे नाजायज काम के अंदर मशगूल है। ये दूसरी बात है कि वो बड़ा कमबख्त है, वो बड़ा कमबख्त है। बाकी कमबख्ती में किसी की शुबा नहीं।
तो मेरे दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसका हमारी तहजीब से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरे करें और अपनी इस तहजीब के ऊपर फख्र करें, उन्हें ज़ेब देता है फख्र करना। लेकिन एक मुसलमान अगर ये काम करे तो उसके लिए बड़े अफसोस का मसला है। ये एक मुसलमान की तहजीब नहीं, दूसरे अगर करें तो वो कर सकते हैं, इसलिए कि उनके पास कोई ऐसा रसूल नहीं आया जो उन्हें पाक करे, जो उन्हें साफ करे, जो उन्हें बेहयाई के कामों से रोके, जो उन्हें जायज और नाजायज बताए, जो उन्हें हराम और हलाल की तालीम दे। उनके पास कोई बताने वाला नहीं आया, उनके पास कोई मुअल्लिम नहीं है, उनके पास कोई मुकम्मल और कंप्लीट किताब नहीं है। लेकिन एक मुसलमान के पास तो अल्लाह का प्यारा रसूल है जो उन्हें पाकीज़ा करने आया है। एक मुसलमान के पास तो एक मुअल्लिम है, अल्लाह ने जिसे अपने बंदों की तालीम के लिए भेजा। एक मुसलमान के पास तो कुरान मुबीन है जिसने हर जायज नाजायज और हराम और हलाल और पाक और नापाक की तफसील बड़ी वजाहत के साथ कर दी है। अब अगर कोई शख्स कलमा भी पढ़ता हो, मुसलमान होने का दावा भी करता हो और ऐसे नाजायज कामों में मशगूल नजर आता हो, तो उसके लिए बड़ी शर्म की बात है कि वो पाक को छोड़कर नापाक चीज इख्तियार कर रहा है और रोशनी को छोड़कर अंधेरे में जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये जानवराना खुसूसियात हैं। तो और जिस इंसान के ऊपर हैवानी खुसूसियत का गलबा होता है वो ये नाजायज काम किया करता है, और जिस इंसान के ऊपर मलकूती खुसूसियत का गलबा होता है वो तस्बीह तहलील करता है, इबादत और रियाजत करता है, बंदगी और इताअत किया करता है। यही वजह है कि आप कुछ इंसानों को देखते हैं कि वो निहायत नेक और पाकीज़ा है, और यही वजह है कि आप कुछ इंसानों को देखते हैं कि वो निहायत बदकिरदार और बुरे लोग हैं। क्या वजह है? उन पर जानवराना खुसूसियात गालिब आ गई और नेकों के ऊपर मलकूती खुसूसियात गालिब आ गई। तो मेरे दोस्तों, तुम्हारे अंदर ये दोनों खुसूसियात हैं। अगर तुम अपनी मलकूती खुसूसियात को उजागर करना चाहते हो, अगर तुम फरिश्तों की तरीके से पाकीज़ा बनना चाहते हो, अगर तुम नेकोकारी की जिंदगी गुजारना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि सब तुमको अच्छा कहें, तो उसके लिए जरूरी ये है कि अपनी मलकूती खुसूसियात को जाहिर कर लो, मलकूती खुसूसियात को उजागर कर लो। और उसका वाहिद तरीका सिर्फ यह है कि रमजान शरीफ के रोजे रखो, और जब रोजे रखने हैं तो सिर्फ पेट और शर्मगाह का रोजा ही न रखो, बल्कि आंख का रोजा रखो, यानी गैर महरम को बुरी नजर से न देखो। कान का रोजा रखो, यानी नाजायज चीजों को न सुनो। और जुबान का रोजा रखो, यानी गाली मत बको, झूठ मत बोलो, बैक बाइटिंग न करो, दूसरे के अंदर ऐप मत निकालो। और हाथ का रोजा रखो, यानी दूसरों को तकलीफ न दो। पांव का रोजा रखो, यानी नाजायज और गुनाह के काम जहां पर होते हैं वहां न जाओ। याद रखो कि गाली बकना, झूठ बोलना, बैकबाइटिंग करना, ऐबजोई करना और दूसरों को ईज़ा देना और नाजायज कामों की जगह क्लब और थिएटर जाना, सनीमा और काजिनो जाना जिस तरीके से पहले हराम था उसी तरीके से अब भी हराम है, लेकिन रोजे की हालत में और ज्यादा हराम है। तुम खाना छोड़ दो, पीना छोड़ो और नाजायज काम न छोड़ो, तो ये समझ लो कि तुम्हें भूख और प्यास से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा, रोजे का कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह ने तुम्हें भूखा और प्यासा रखने के लिए ये रोजे तुम पे फर्ज नहीं किए हैं, बल्कि रोजे फर्ज किए हैं। उनका मकसद ये है कि तुम्हारी मलकूती खुसूसियात को उजागर कर दिया जाए। मलकूती खुसूसियात को उजागर करने के लिए गुनाह के काम छोड़ दो, नेकियां करो। रमजान शरीफ में हर नेकी का बड़ा सवाब है। नफिल करोगे फर्ज का सवाब मिलेगा, अगर फर्ज अदा करोगे तो 70 गुना तुम सवाब पाओगे। तो बेहतरीन तरीका यह है कि रोजा रखो, गुनाह के काम छोड़ो, नेकी के काम करो। और रमजान शरीफ में सबसे बड़ी नेकी यह है कि खुद रोजा रखो, दूसरे रोजेदार को इफ्तार कराओ। दूसरे रोजेदार को इफ्तार कराओगे तो उसका इफ्तार
इंतजार कराने का भी सवाब तुमको मिलेगा, उसके रोजे खुलवाने का सवाब तुमको मिलेगा, और उसके रोजे का भी सवाब तुमको मिल जाएगा। उसके सवाब में कमी नहीं आएगी और उसके रोजे का सवाब भी तुमको मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, बेहतरीन मौका है, नेकियां कमाने का यह महीना है। इसके अंदर जितनी भी नेकियां कमा सकते हो कमाओ। यतीमों, फकीरों, मिस्कीनों, बेवाओं, मुफलिसों और मुसाफिरों की मदद करो। और ये मदद करने का बेहतरीन तरीका यह है कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर जो ज़कात फर्ज की है वो ज़कात अदा करो। ये गम मत करो कि हाय हम ज़कात अदा करेंगे तो इतना पैसा कम हो जाएगा, हमारा माल कम हो जाएगा, नहीं इतना पैसा हमारे पास से निकल जाएगा। याद रखो कि जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाती है उस माल में बरकत होती है, वो माल कम नहीं होता, वो माल बढ़ता है। और जिस माल की ज़कात अदा नहीं होती वो बेबरकती माल होता है, उसकी हिफाजत की कोई जिम्मेदारी नहीं। हो सकता है कि वो माल चोरी हो जाए और ये भी हो सकता है कि उस माल वाले के कारोबार में घोटाला हो जाए, घाटा हो जाए, उसका दिवाला निकल जाए। नहीं तो मेरे दोस्तों, इस माल के थोड़े से कम होने का गम न करो और अज़ाब इलाही से डरते रहो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जिसको हमने माल दिया अपने फضل से और फिर हमने उसके ऊपर ज़कात फर्ज की और फिर वो बुख्ल करता है। आयत करीमा सुन लीजिए, इरशाद रब्बानी होता है, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिहि हुवा खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतवक़ूना बिमा बखलू बिही यौमल क़यामह। वो लोग जिनको अल्लाह अपने अपने फजल से माल और दौलत अता फरमाया है, वो अपने माल को अपने हक में बेहतर न समझे बल्कि वो उनके हक में बहुत बुरा है। अन करीब कयामत के दिन ये लोग जो बुख्ल करते हैं और कंजूसी से काम लेते हैं, उनके इस माल को फंदा बनाकर और तौक बनाकर उनके गले में डाल दिया जाएगा। तो क्या कोई मुसलमान इस बात के लिए तैयार है कि इस दुनिया में धन दौलत को जमा करे और अल्लाह की राह में खर्च न करे और कल कयामत के दिन उस तमाम माल को एक फंदा बना दिया जाए और फंदा बनाने के बाद उस मुसलमान के गले में डाल दिया जाए? क्या तुमसे वो गर्दन उठ सकती है जिस गर्दन के अंदर वो माल फंदे की शक्ल में पड़ा हुआ हो, तौक की शक्ल में पड़ा हुआ हो? तो अल्लाह ताला हमें और आपको, तमाम सुन्नी मुसलमानों को अहकाम खुदाबंदी के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि हमें जो कुछ भी तूने अपने करम से अपने फजल से अता फरमाया है वो तेरी राह में खर्च करें और तेरे बंदों की उससे मदद करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।